Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले कह रहे हैं विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को भी लॉन्च किया गया? IFWCS। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एंड इंडिया में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है कि हम फॉरेस्ट को कैसे रखते हैं, राइट, क्लीन रखना है, पेड़ों को नहीं काटना है, क्योंकि फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च की गई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। यहीं पे याद रखेंगे फिर जो ये स्कीम है, इसके 3 मेन कंपोनेंट है: फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। राइट, तो मार्क करके चलेंगे, ये IFWCS इस सर्टिफिकेशन स्कीम को गवर्न किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल, जो कि ऑपरेटेड है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आ जाता है। ठीक है हमारे, और ये किस लिए लॉन्च की गई थी ये स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। राइट, एंड इंडिया में, क्योंकि एक हम नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कार्बन सिंक का काम करते हैं। राइट, और उसी को एंकरेज करने के लिए, उसी से क्योंकि कार्बन रिलीज किया जा रहा है, हम इतनी नेचुरल रिसोर्सेज पे की जगह पर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की जगह पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो हमें अपने फॉरेस्ट को भी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो भी कार्बन सिंक का काम कर सके। नेक्स्ट, IFPRI। IFPRI क्या है? इंटरनेशनल IFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है? टू स्ट्रेंथन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बेसिकली बोले तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, एंड इन दैट टू एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए IFPRI, जो कि है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने किनके साथ टाइप किया? नीति आयोग के साथ यहाँ पे टाइप किया गया। राइट, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, रूरल डेवलपमेंट लाने के लिए, ट्रेड में, क्लाइमेट चेंज प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया। अगर यहीं पे देखिए, IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने और नीति आयोग ने ये 5 साल के लिए अभी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिससे जो आपका डेवलपमेंट है इंडिया में वो होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे हम एग्रीकल्चर से भी हमने इकोनॉमी को और बेटर कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में
एआई का यूज़ किया जा रहा है, मशीन लर्निंग यूज़ की जा रही है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो गैजेट्स है वो यूज़ किए जा रहे हैं, ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है, इवन सैटेलाइट्स यूज़ की जा रही है ताकि वेदर को हम प्रेडिक्ट कर सकें एंड फर्दर फार्मर्स को उस हिसाब से डाटा प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन होते हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ के चेयरमैन हैं। सीईओ कौन रहेंगे, BVR सुब्रमण्यम, 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। IFPRI की बात करें तो डायरेक्टर जनरल यहाँ पे कौन रहेंगे, जोहान स्विनेन, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, वॉशिंगटन DC में, और इसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। मूविंग ऑन, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई SBI ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा। एक रिपोर्ट थी जो कि है वीमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना 2023 दिसंबर की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो वीमेन वोटर्स है ना, 2029 तक जो वीमेन वोटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेन वोटर्स। राइट, मतलब वीमेन वोटर्स ज़्यादा होंगे इंडिया में 2029 तक एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैन वोटर्स। 2029 के जनरल इलेक्शंस की बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2029 में 73 करोड़ वोटर्स होंगे, एक्सपेक्टेड वोटर्स होंगे, जिसमें से 37 करोड़ आपके वीमेन वोटर्स होंगे और 36 करोड़ आपके मैन वोटर्स होंगे। राइट, इवन यहीं पे देखा कि जो 2023-24 का भी डाटा होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 68 करोड़ वोटर्स होंगे, जिसमें से 33 करोड़ वीमेन होंगी 49% एंड 51% आपके मैन वोटर्स होंगे यहाँ पर। करेक्ट, फिर एक और डाटा आया इसी में, अगर हम 2047 की बात करें, जब हमें इंडिया को 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तब अगर वोटर प्रोजेक्शन करें तो 2047 तक जो वोटर टर्न आउट होगा, इट शुड इंक्रीज टू 55% वीमेन एंड मैन वोटर टर्न आउट माइट डिक्रीज टू जस्ट 45%। मतलब 115 करोड़ में से अगर हम देखें तो 55% वोटर्स तो वीमेन होंगी और 45% वोटर्स सिर्फ मैन होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। ये जो रिपोर्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। पहले तो ये देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया, ये लॉजिस्टिक होता क्या है। लॉजिस्टिक्स होता है जब आप एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके चलते हैं। लाइक फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना और वेयर हाउस तक जाना, वो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर आपने सुना होगा कि पेट्रोल के हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से पूरी मार्केट पे क्यों इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फिर लॉजिस्टिक का भी बढ़ जाएगा खर्चा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम या तो डीजल या फिर पेट्रोल के व्हीकल पे ले जाते हैं, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर उसका खर्चा बढ़ेगा तो हम देखेंगे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो गुड है, उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए पेट्रोल काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। तो यहीं पे देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स को हम इंडिया में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकते हैं। इवन आपने ऑब्जर्व करा होगा NHAI, इनके द्वारा कोविड-19 के बाद से अभी तक बहुत सारे हाईवेज डेवलप करे गए हैं ऑल अराउंड इंडिया, जिससे जो मेजर सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट किया गया और जो टाइम है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया। इससे क्या होगा, एक तो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, ट्रेड बढ़ेगा एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट थी किसके द्वारा रिलीज की गई, तो DPIIT के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की थी अभी रिसेंटली। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया NCAR अलॉन्ग विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। NCAR क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मिलकर इसको प्रिपेयर करा गया। राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। और हम देख ही चुके हैं क्या रिपोर्ट है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कैसे इंडिया में कम कर सकते हैं एंड कैसे अगर हमें लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाना है तो उसको क्या क्या चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू WHO द रोड ट्रैफिक डेथ्स ग्लोबली डिक्लाइंड बाय हाउ मच %। तो देखो WHO की एक अभी रिपोर्ट आई, इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात करी, एक तो ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड और एक इंडिया का डाटा। अगर ग्लोबली की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ग्लोबली जो रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती है ना, उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है, उसमें कमी देखने को मिली है बाय 5%। वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती है ना, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है सिर्फ इंडिया में, बल्कि ग्लोबली रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स डिक्रीज हुई हैं बट इंडिया में ये इंक्रीज हुई है। हमसे पूछा गया कि जो डिक्लाइन हुआ है कितने % से डिक्लाइन हुआ, वो है 5% से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ग्लोबली, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय WHO। रिपोर्ट थी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन सेफ्टी 2023 एंड इसी में बताया, ये 10 साल का डाटा है 2010 से 2021 के बीच का। इसमें बताया कि ग्लोबली जो
रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती है ना, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली बाय 5%। ये 5th एडिशन था एंड इंडिया में बस इंक्रीज हमें देखने को मिला है। WHO की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस यहाँ के डायरेक्टर जनरल रहेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, एंड 1948 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो LIC कार्ड्स एंड IDFC फर्स्ट अलॉन्ग विद मास्टर कार्ड, इन तीनों के द्वारा मिलके अभी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया, जो कि है LIC IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड, राइट। ये आपका क्रेडिट कार्ड जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई इसकी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी इसकी एनुअल फीस नहीं रहेगी। एंड 2 वेरिएंट्स में ये लॉन्च किया जाएगा, LIC क्लासिक क्रेडिट कार्ड एंड LIC सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करूं तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? V वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा और इसको 2008 में इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है फिर कैश फ्री पेमेंट्स। इनके द्वारा इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो है फ्लोवाइज। ये कैश फ्री के द्वारा जो ये पेमेंट सेल्फ होस्टेड पेमेंट लॉन्च किया गया, बेसिकली क्या है, यहाँ मर्चेंट अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएगा। इससे क्या होगा, एक तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसमें 40% का रिडक्शन देखने को मिलेगा और जो सक्सेस रेट है वो 10% यहाँ से बढ़ जाएगा। ईजी हो जाएगा मर्चेंट्स को पेमेंट करना अपने ही प्लेटफॉर्म से, राइट। एंड इससे क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा सिक्योर है ये एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल पेमेंट। एंड मतलब नॉर्मल पेमेंट भी सिक्योर है लेकिन इससे और सिक्योरिटी बढ़ेगी, राइट। अगर आपको याद हो, यहीं पे बात करूं मैं, UPI सेफ्टी एम्बेसडर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। रीजन बीइंग UPI सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए कि UPI सेफ है, सिक्योर है पेमेंट पर्पसेस के लिए एंड इसके ट्रांजैक्शन बढ़ाओ। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड DBS बैंक इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को प्रमोट किया जा सके अक्रॉस इंडिया। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड काफ़ी हेविली बैट कर रही है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स पर, राइट। और इससे क्या होगा, एक तो हम ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बायोगैस बनती कैसे है? जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू होता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, उसको सड़ा कर ये आपकी गैस बनती है। एंड यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट रहेगा कि हम 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को खोल सकें आने वाले 5 सालों में। एंड इन्हीं का यहाँ पे टारगेट रहेगा कि हम 5.5 मिलियन टन्स पर एनम एग्रीकल्चर रेजिड्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को हम किस में बना सकें? कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट कर सकें। यहीं पर इनका एक और टारगेट याद रखेंगे, इनका है नेट जीरो गोल्स अचीव करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना बाय नियरली 2 मिलियन टन्स एनुअली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो है मुकेश अंबानी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं DBS बैंक की, जिनके साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे टाई अप करा ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को हम प्रमोट करें ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया। तो इस DBS बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुरुजीत सोम। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो अभी म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बेरेनबॉयम एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू आवद, इनको रिसेंटली ऑनर किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज से 2023 के लिए, राइट। एंड इनका जो एफर्ट्स है इजराइल वॉर और जो पैलेस्टीनियन के बीच में भी वॉर चल रही है, उसको उनके बीच में एक पॉलिटिकल बेसिकली बोले तो एक पीस रेजोल्यूशन लाने के लिए जो नॉन वायलेंट था, म्यूजिक के तौर पर म्यूजिक को यूज़ करते हुए, राइट, इन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया मीनिंगफुल पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग, जिससे क्या है जो ये वॉर खत्म हो सके, राइट, एक प्रॉपर हम स्टांस ले सकें एंड इस चीज़ को रिड्यूस किया जा सके। बिकॉज वॉर की वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है, काफ़ी लोगों की जान जाती है एंड ये बहुत ज़्यादा एक टोल आता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी। तो इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्क किया एंड इसीलिए इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है, डैनियल बेरेनबॉयम एंड एक्टिविस्ट अली अबू आवाद को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करें तो इंडिया की पहली वीमेन कैंडिडेट कौन बनी जिनको इलेक्ट किया गया टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनिड्रॉइड। ये यूनिड्रॉइड क्या है? UNIDROIT। यूनिड्रॉइड बेसिकली इनका एम रहता है ताकि यूनिफॉर्म लॉज को डेवलप करना, टू मॉडर्नाइज, हार्मोनाइज एंड कमर्शियल लॉज को डेवलप करना का, ताकि जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अच्छे से वर्क कर सके, करेक्ट। यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल पे इलेक्ट होने के लिए मिनिमम 21 वोट्स चाहिए होती हैं और यहाँ पर उमा शंकर को याद रखेंगे, उमा शंकर को यहाँ पर कितने वोट्स मिले? 45 वोट्स मिले आउट ऑफ 52।
9 वोट्स। ये रोम इटली में इनका इलेक्शन हुआ था। एंड यूनिड्रॉइट की अगर फुल फॉर्म देखें वो क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। 82nd सेशन था इसका एंड 45 आउट ऑफ 59 वोट से इन्होंने इस इलेक्शन को जीत लिया एंड इनको इलेक्ट किया गया और ये पहली वीमेन बन गई हैं, फर्स्ट वीमेन कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनिड्रॉइट। ठीक है, उमा शंकर की बात करें, ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड लीगल एडवाइजर हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये किस पीरियड से किस पीरियड तक होंगी? विद दिस इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक। नेक्स्ट बात करते हैं एक्विजिशंस की। अभी रिसेंटली कॉन्स्टेंटेनिया, इनको 100% एक्वायर किया जा रहा है बाय कैप्री पैक, राइट, आई रिपीट, कॉन्स्टेंटेनिया ये रिसेंटली एक्वायर हो रहे हैं, 100% एक्विजिशन हो रहा है किसके द्वारा? कैप्री पैक के द्वारा, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट क्या नाम रहेगा जिसको लॉन्च किया गया केरला में? वो है बैराकूडा। ये बैराकूडा याद रखेंगे, इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट रहेगी। कहाँ पर? अलेपुजा केरला में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको डेवलप किया गया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा एंड नावेल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये जो बैराकूडा है ये 50 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर्स बोट है, राइट, एंड ये जो वेसल है इसको डिप्लॉय किया जा सकता है इवन इन द रफ सीज एंड 12 पैसेंजर्स को ये ले जा सकती है, ट्रेल मतलब इन द प्रोसेस ये कैरी कर सकती है अलॉन्ग विद द कार्गो एंड 14 मीटर लॉन्ग है, 4.4 मीटर वाइड है, 12.5 नॉट्स की मैक्सिमम इसकी स्पीड रह सकती है और एक सिंगल चार्ज पर 7 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकती है इन वाटर। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे चाइना के द्वारा अभी एक रियूजेबल रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा रियूजेबल अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट। उसको लॉन्च किया गया फ्रॉम जिक्वेंस सैटेलाइट सेंटर। किस रॉकेट की मदद से? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया, याद रखेंगे, चाइना के द्वारा। देन इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ याद रखेंगे चाइना की ही। चाइना ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्च किया, राइट, आई रिपीट, चाइना के द्वारा वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट, मार्क करेंगे। चाइना का टारगेट याद रखेंगे एक और कि चाइना का जो टारगेट है वो है 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सके फ्रॉम न्यूक्लियर बाय 2035 एंड 18% हम जनरेट कर सकें बाय 2060। कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको भी इंडक्ट किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो इंडिया के 2 फॉर्मर प्लेयर्स याद रखेंगे, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, ये वो 2 इंडियन टेनिस प्लेयर्स बने जिनको इंडक्ट किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पहले इंडियंस बने एज वेल एज फर्स्ट एशियंस बने जिनको इसमें ऐड किया गया इस हॉल ऑफ फेम में। एंड इंडिया यहीं पर 28th नेशन बन गया है जिसको रिप्रेजेंटेशन मिली इन द हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इनके द्वारा जो जर्सी नंबर 7 है ना महेंद्र सिंह धोनी की, उसको अभी रिसेंटली रिजर्व कर लिया या फिर उसको रिटायर कर दिया परमानेंटली। मतलब रिटायर करने का मतलब अब कोई भी प्लेयर फ्यूचर में आके 7 नंबर की जर्सी को नहीं ले सकता है। इससे पहले एक और जर्सी को रिटायर किया गया था, वो था जर्सी नंबर 10 जो था किसकी? सचिन तेंदुलकर की, राइट। कोई भी प्लेयर इंडिया में 10 नंबर की जर्सी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो रिजर्व है किसके लिए? सचिन तेंदुलकर के लिए। एंड अब 7 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया बिकॉज वो किनकी थी? महेंद्र सिंह धोनी की। एंड ये इनकी अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए ही ये 7 नंबर जर्सी को यहाँ पे रिटायर किया गया। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2018 में एंड इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में। नेक्स्ट आ जाते हैं ITF वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरेना सेबलेंका एंड नोवाक जोकोविच। अरेना सेबलेंका ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अगर पूछा जाए कि मैन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेयर किसको नेम किया गया, तो मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन कौन रहे फॉर द 8th टाइम इन हिज करियर? वो है नोवाक जोकोविच। और अगर वीमेन का पूछा जाए फॉर द फर्स्ट टाइम वीमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन कौन बनी फॉर द फर्स्ट टाइम? वो है अरेना सेबलेंका। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं और ये बेलारूस से बिलोंग करती है, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। नीति आयोग एंड IFPRI इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया टू स्ट्रेंथन पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इंडियाज वीमेन वोटर्स टू सरपास मेल वोटर्स 2029 के जनरल इलेक्शन में एज पर SBI's ERD रिपोर्ट। देन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, ये रिपोर्ट रिलीज की गई DPIIT के द्वारा। WHO का 5th ग्लोबल स्टेटस की अगर ये बात करें, रिपोर्ट आई इनकी 5th एडिशन की ऑन द ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी, और इन्होंने बताया कि ग्लोबली तो हम देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट से जो डेथ्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं बाय 5%, लेकिन इंडिया में हम देख रहे हैं कि ये डेथ्स बढ़ रही हैं। देन LIC, IDFC फर्स्ट एंड मास्टर कार्ड के द्वारा मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। कैश फ्री पेमेंट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। RIL एंड DBS बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया टू प्रमोट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, और यहाँ पे RIL का टारगेट रहेगा कि हम 100 ऐसे कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स सून यहाँ पे लॉन्च कर सकें। देन म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बैरनबॉयम एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद, इनको ऑनर किया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज से 2023 के लिए। नेक्स्ट, इंडियन वीमेन कैंडिडेट उमा शंकर, राइट, ये वो पहली वीमेन कैंडिडेट बनी फ्रॉम इंडिया जिनको इलेक्ट किया गया टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनिड्रॉइट। CCI ने अप्रूवल दिया फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ कॉन्स्टेंटेनिया बाय कैप्रीकैप। तो एक्वायर कौन हो रहा है? कॉन्स्टेंटेनिया। कौन एक्वायर कर रहा है? कैप्रीपैक। देन इंडिया के फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या रहेगा? वो है बाराकूडा। ये कहाँ लॉन्च की गई? अलपुज, केरला में इसको लॉन्च किया गया। चाइना ने फिर लॉन्च किया अनक्रूड रियूजेबल स्पेस क्राफ्ट को इनटू द ऑर्बिट। देन चाइना के द्वारा ही वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया गया। देन इंडिया के कौन से वो टेनिस प्लेयर्स थे जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया? लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। एंड BCCI ने कौन सी जर्सी नंबर को अभी रिटायर कर दिया था? जर्सी नंबर 7, जो किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की। एंड इससे पहले जर्सी नंबर 10 को किया गया था, जो कि है सचिन तेंदुलकर की। देन नोवाक जोकोविच एंड अरियाना सेबलेंका इन्होंने ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 को जीत लिया है। मेंस ITC वर्ल्ड चैंपियन बने नोवाक जोकोविच फॉर 8th टाइम एंड अरियाना सेबलेंका ये पहली बार बनी। नोवाक जोकोविच सर्बिया से, अरियाना सेबलेंका कहाँ से? बेलारूस से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 की। मतलब कौन सी सिटी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है टू देयर सिटीजन्स, जहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, राइट। तो वो कौन सी सिटी है? तो हम सबसे पहले अगर बात करें इंडियन सिटी यहाँ पे कौन सी रही जिसने टॉप किया, वो है हैदराबाद, राइट। हैदराबाद तेलंगाना एमर्ज्ड एज द टॉप सिटी इन द मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग। और हैदराबाद याद रखेंगे 6th टाइम ये बेस्ट इंडियन सिटी का खिताब जीता इन्होंने, बेस्ट इंडियन सिटी, राइट, 6ठी बार। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं पूछूं ग्लोबली किसने यहां पे टॉप किया, तो वो है वियना। वियना कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। इन्होंने सिक्योर किया टॉप पोजीशन फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, राइट। यहीं पर एक चीज और याद रखेंगे, हैदराबाद, पुणे एंड बेंगलोर, इनकी रैंकिंग वाइज क्या रहेगी? अगर ग्लोबली इनकी रैंकिंग हम यहां देखें तो आपकी हैदराबाद 153rd पोजीशन पे, पुणे 154th पोजीशन पे एंड बेंगलोर 156th पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। तो याद रखेंगे मर्सर के द्वारा ये क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिलीज की गई एंड यहां पर जिन्होंने टॉप किया ग्लोबली वो है वियना। फिर एक और चीज यहां पे अगर मैं मर्सर की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मार्टिन फर्लैंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA एंड 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, अब यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रिया इसने टॉप किया फॉर द 11th टाइम एंड फॉलोड बाय ज़ुरिक 2nd पोजीशन पे एंड ऑकलैंड 3rd पोजीशन पे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंजेक्ट किया 250 मिलियन डॉलर टू बूस्ट द इंडियाज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो हम जानते हैं हम इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग आईफोन, अगर आपको याद हो, आईफोन की भी हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट हो जाए। इवन टेस्ला से भी बात की जा रही थी। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हम सेटअप कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंडर हमने जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सेटअप कराने की बात की गई और शुरू भी हुई। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाएगा, करेक्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में फिर हमें बाहर पे करना पड़ता है।
इसीलिए अभी दो प्रोग्राम्स यहाँ पे हम देखेंगे। पहला प्रोग्राम है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, दोनों प्रोग्राम बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही रहेंगे। एंड पहला है जहाँ पे ये $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इंडिया का उसको ग्रो किया जा सके, राइट। इससे क्या होगा, गति शक्ति मास्टर प्लान के अंडर जो हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोग्राम था उसके अंडर हम देखेंगे कि जो हमारा कनेक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी और लोगों को डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। फिर दूसरा आ जाता है कि यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किया ताकि इंडिया को सॉलिड वेस्ट जो है, राइट, उससे छुटकारा पाया जा सके, उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। एंड जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एंड सैनिटेशन है उसके ऊपर वर्क किया जा सके, उसके लिए $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए। और हम जानते हैं इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 क्या है, टू मेक सिटीज़ गार्बेज फ्री। और इसके लिए इन्होंने टारगेट सेटअप किया है इंडिया ने 2026 का कि हम सिटीज़ को गार्बेज फ्री बना देंगे 2026 तक, ठीक। तो ये आपका टारगेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर किस बैंक ने अभी 70 मिलियन यूरो का एक लोन अप्रूव किया विद जर्मनीज KFC फॉर सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स। देखो सोलर पैनल्स बनाने के लिए ताकि फार्म्स इस्टेब्लिश किए जा सकें जहाँ पे जो एनर्जी है हम सोलर एनर्जी से सन से जनरेट करें, सनलाइट से जनरेट करें एंड हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज पे शिफ्ट हो सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जनरेट कर सकें जो कि आपकी सोलर एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, ठीक। इसी के लिए SBI ने अभी 70 मिलियन यूरो का यहाँ पे लोन अप्रूव किया। जर्मनी की KfW ये कंपनी है जो कि सोलर PV प्रोजेक्ट, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स, आपके पैनल्स ये सब डेवलप करती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम हो जाएगा क्योंकि अब तो सिर्फ सोलर एनर्जी से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, राइट, इन द लॉन्ग रन, करेक्ट। और यहीं पे इंडिया का ये जो इनिशिएटिव लिया गया ना, याद रखेंगे इनकी जो डील हुई COP28 के दौरान हुई और COP28 कहाँ पर हुई था, दुबई UAE में हुआ था अभी, राइट। चलिए अगर मैं SBI की बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1955 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। KfW की मैं बात करूं तो स्टेफन विंटेल्स यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर रहेगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एंड 1948 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है विच बैंक एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 CAFI अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग बाय IFC। ये CAFI क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई रिपीट, क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड, राइट। ये क्या है, बेसिकली क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए कि क्या हम क्लाइमेट में कितना फंड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितना पैसा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है ताकि वो अपना फंडिंग कर सके इन दीज क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली कौन सा बैंक एमर्ज हुआ एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 CAFI अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग बाय IFC, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे याद रखेंगे वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, अलुवा केरला में, ठीक। और इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, एक है मोस्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड बैंक, किसके द्वारा वो रहा, कौन सा बैंक रहा विद द मोस्ट ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड, तो वो है इक्विटी बैंक। इक्विटी बैंक कहाँ का है ये इक्विटी बैंक, ये कीनिया का बैंक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरल बैंक रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ 2023 CAFI अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग बाय IFC, कि हम क्लाइमेट में कितना फंड लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी कितना फंड ले रही है, कितना फंड अगर हम कंपनीज को दे रहे हैं तो वो कितना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहा है उनका, कितना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा है, कितना वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में दे रहे हैं, कितना वो ग्रीन फाइनेंसिंग में दे रहे हैं, राइट, कितना वो अपने इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। फेडरल बैंक की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन MD एंड CEO, अलुवा केरला हेडक्वार्टर एंड 1931 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली सरपास किया अफगानिस्तान को टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम इन 2023 अकॉर्डिंग टू UNODC। फुल फॉर्म बताओ UNODC की। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PABS मेंशन इन द ड्राफ्ट पेंडेमिक ट्रीटी डिस्कशन। थर्ड, कैप्टन फातिमा वासीम, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की बाय बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट विच लोकेशन। फोर्थ,
ICET या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? एंड फिफ्थ, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2022 एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2021? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी का। इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा सेशन। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.